Hello students, myself Rehana Begum. I am here again with a new video on the world during the world wars. So students, listen the video till the end for your better understanding. So let us start with an introduction. In this chapter we shall talk about the history of the world in the first half of the 20th century, the causes, the consequences of the two world wars, and the creation of an institution like the United Nations to ensure world peace and development. To understand all this, we should first know the meaning of the war. So, what is there inside the introduction? We may come to know the causes, the consequences, the United Nations, okay na? So, all these things we may come to know. Before that, we should know the word war. Okay na? What is war? War is nothing but any issue or conflict between different countries or different groups within a country or fighting between two countries. Okay? So students, Eric Hobson, a historian, called the 20th century the age of extremes. The age of extreme means the life expectancy rate was growing higher because of new discoveries in the field of medicine. The field of medicine was growing up, literacy level was also growing up, there were development in the technologies, 50% of the women were given powers, and more than 100 countries were become independent all over the world. Okay, so now, so students, एरिक हेप्सन क्या बोले थे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट और लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट, वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिल रहा और इंडिपेंडेंट हो रहे थे कंट्रीज, इसलिए ये जो दौर था उसको क्या बोले उन्होंने? एज ऑफ एक्सट्रीम्स बोले. ओके, नाउ व्हाट इज देयर इनसाइड द वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर को और क्या बोलेंगे? द वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर और द ग्लोबल वॉर. It was started in the month of 20th July 1914 to 11 November 1918. और कब स्टार्ट हुआ था ये? 28 जुलाई 1914 to 11 नवंबर 1918. सो डेट्स आर इम्पॉर्टेंट हियर. और इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वॉर भी बोलेंगे क्योंकि पूरी दुनिया के कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे. ओके, देन नेक्स्ट कैजुअलिटीज़. कैजुअलिटीज़ में क्या है? देखिए, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वॉज 1,70,00,000. कितने लोग मर गए थे? 1,70,00,000. अपार्ट फ्रॉम दैट 11 करोड़ देर वर सोल्जर्स, और उसमें सोल्जर्स कितने थे? 11 करोड़. और 16 करोड़ वर सिविलियंस एंड द जनरल पब्लिक. ओके, एंड 2 करोड़ वर वॉन्डेड और वेर इंजर्ड पर्सन्स. ओके, सो दीज वर द कैजुअलिटीज. दोज वेर पीपल्स दोज हु आर affected by the World War I. Now causes, there are 4 main causes for the World War I. To learn this, you can remember an acronym. Acronym is the MAIN, main. M is for militarism, A is for alliance, I is for imperialism, and N is for nationalism. Now let us discuss it in detail. Militarism. Every country wants to make their machine guns, okay na? Then they used guns for the first time to attack on other countries, and they used to produce large naval ships. They also increased their army size. Apart from all these countries, Germany and Britain were the leading countries. Okay, they increased their military power in a huge manner, okay, to develop their nation. Now next is A. A is for alliance. To maintain their powers, different countries make alliances or groups secretly. So there were triple alliance or triple entente since 19th century to maintain balance of powers. So everyone wants to maintain their balance. So they made up 2 groups, triple alliance and triple entente. Triple alliance was made in 1882, and in this Germany, Austria-Hungary and Italy was involved, and triple entente made in 1907, and France, Britain, Russia was involved in this. Balkan bloc, Austria, Germany, Turkey, Russia competed for the supremacy over the countries. For this reason only there were fightings among these countries. So Balkan politics was the politics among the Austria, Germany, Turkey, Russia.
and they wanted to compete with each other and they wanted to sell their products to others. So for that reason only they were fighting with each other. Okay, so students, there were fighting between Austria and Serbia also, but the other countries were also involved in this war. Now next, I is for imperialism. Every country wanted to build their own nations or colonies in Africa. Okay, everyone wanted to capture the large area. Britain was the leader among all the countries. Over 25% of the world, the Britishers were rulers. From India, 13 lakh soldiers were them to fight in First World War. Okay, सो व्हाट इज़ इम्पीरियलिज्म? इन इम्पीरियलिज्म क्या था, पूरे जने अपने अपने कॉलोनीज अफ्रीका में बनाना चाह रहे थे. सो अफ्रीका में क्यों बनाना चाह रहे थे? क्योंकि वो लोगों को ट्रेडिंग करना था. ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे आगे लीडिंग कंपनी थी वो किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी. ओके, और ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो कि वर्ल्ड के पूरे 25% पे वो लोगों का रूलिंग पीरियड चलाए, और इंडिया से भी वो लोग 13 लाख सोल्जर्स को लेके वर्ल्ड वॉर 1 में फाइटिंग्स कराए. Now next is N. N is for nationalism. In Europe, everybody wanted to develop their own nation. So they believed in the glory of war. Glory of war means everyone thought that if we are attacking on other country, then we will be becoming as popular and brave. So they thought that glory of war is necessity for growing their nation and to development. Okay ना? So what is nationalism? नेशनलिज्म में क्या है? ग्लोरी ऑफ वॉर था, जो कि वो लोग क्या समझ रहे थे कि हम अगर फाइटिंग्स करेंगे तभी अपन पॉपुलर होंगे और हमारा देश का नाम रोशन होगा. इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे? वॉर के ऊपर बिलीव कर रहे थे. ओके, नाउ व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज? इमीडिएट कॉज वाज द आर्कड्यूक फर्नांड्स ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी एंड हिज वाइफ वेर असैसिनेटेड बाय द बोस्निया, and they went to Serbia for official work. Then Balkans group were attacked on them. Then the Austrian people thought the Serbia has assassinated to the king. So immediate cause था क्या था? देखो बेटे, यहाँ पर आर्कड्यूक फर्नांड्स जो कि ऑस्ट्रिया के किंग थे और उनकी वाइफ का नाम क्या था? सूफिया था. ये दोनों क्या करे थे? ऑफिशियल वर्क के लिए सर्बिया को गए थे. सर्बिया में गए तो ये इनके ऊपर कौन अटैक करे? बॉस्निया वाले अटैक करे. जैसे ही अटैक करे तो इनका मर्डर हो गया वहाँ पर. ये लोग मर गए, एट ए टाइम मर गए, ये लोग दोनों भी मर गए. सो ऑस्ट्रिया वाले क्या समझे कि ये लोग क्योंकि विजिट पे सर्बिया को गए थे तो सर्बिया वाले मारे बोल के ये लोगों को समझे. ओके ना? मगर असल जो मारे थे वो कौन थे? बॉस्निया. बॉस्निया एक ऐसी कंट्री है जो जिसके ऊपर हुकूमत किसकी थी? ऑस्ट्रिया की थी. सो वो बदला लेने के लिए ये लोग आर्कड्यूक फर्नांड्स और उनकी वाइफ सूफिया का मर्डर कर दिए थे. सो अब इसके वजह से क्या हुआ? फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए. फिर से वो लोग रशिया डिक्लेयर्स वॉर ऑन जर्मनी, फ्रांस डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी, बिकॉज दे वेर ट्रिपल इंटेंट फॉर द रीज़न दे हैव टू हेल्प टू ईच अदर. ओके ना? सो क्योंकि ये लोग ट्रिपल अलायंस बनाए थे, ट्रिपल इंटेंट बनाए थे, तो एक जन को अगर मारे कोई दूसरे जन तो फिर दूसरे जन उनकी हेल्प करे. जैसे कि जर्मनी के ऊपर अटैक हुआ तो रशिया हेल्प कर रहे हैं, फ्रांस के ऊपर अटैक हुआ तो जर्मनी हेल्प कर रहे हैं. सो ये लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से हेल्प ले लेके वॉर को आगे बढ़ा रहे थे. तो अब ये वॉर जो कर रहे थे ये लोग किस तरीके से कर रहे थे? आर्मी से बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करे थे लोग? देखिए, ट्रेंचेस. ओके ना? द ट्रेंचेस, दे यूज टू लिव इन द ट्रेंचेस, दे ईट देयर एंड डू एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन दोज ट्रेंचेस ओनली, बिकॉज दे थॉट दैट if they are coming outside of the trenches, the opposite party will be attacking on them. Okay, for their protection they dig the trenches and they used to live in them, and they live in them till 3 months. Okay na? For 3 months, assume that if you are living inside of the earth for 3 months, what will be the condition become? Okay, as they were living for the 3 months, because of the water or rain water was inside of the ducts, because of that only they got the fungal infections in their legs, and there will be health issues. For that health issues only so many soldiers were killed. Okay, and by machines also they shoot it a lot. Okay, so the battle of Somme is a battle in which 80,000 soldiers dead in one day. Okay, बैटल ऑफ सोम करके एक बैटल है जिसके अंदर 80,000 सोल्जर्स वन डे में डेथ हुए थे. ओके, सो ये सबसे बड़ी बैटल थी. एज्यूम दैट अगर एक ही दिन में 80,000 लोग मर जाएंगे तो सोचिए आप, थोड़ा एज्यूम करिए. ओके, सो
इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर वन। अब देखिए इंडियंस का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट्स है। क्यों इफेक्ट्स है? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा तादाद में थे और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स दे दे के ब्रिटिशर्स उस चीज़ के लिए इन्वॉल्व करे थे, और वो लोग जो थे बिल्कुल इनोसेंट थे, वो लोगों को ये सब चीज़ों का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। तो सोचिए आप इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व, बेकसूर लोग मारे गए। ओके ना, इसीलिए अपनी हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू को रखा गया है, क्योंकि अपनी आने वाली जो जनरेशन है उनको मालूम होना क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे सोल्जर्स जो थे नेशन के लिए, अपने नेशन को बिल्ड करने के लिए कैसे कैसे वो लोग सेक्रीफाइसेस करे, ये सब चीज़ें मालूम होने के लिए अपनी हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लेसन के एंड में आपको और समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अब ये इतने सालों का पुराना हो गया, ये जैसे कि 1900s की बात हो गई है, फिर अपन ये दौर में क्यों सुनना ये, ताकि आगे चल के फिर से वॉर्स नहीं होना, अपन पीसफुल अपनी डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखना। इसीलिए अपने जो जनरेशन चल रही है वो लोगों को बताने के लिए लोग कैसे कैसे किस तरीके से मर गए, कैसे कैसा एक दूसरे से लड़ लिए थे, फिर कैसे कैसा सीक्रेट अलायंस बनाए वो लोग, फिर कैसा कैसा उस चीज़ का वो लोगों को फेस करना पड़ा, सो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए। हाँ, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हिस्ट्री में अपने को वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर इंडियन सोल्जर्स कितने इन्वॉल्व थे? 1.3 मिलियन इंडियंस सर्व द ब्रिटिश आर्मी एंड फाइट फॉर द ब्रिटिशर्स। 50,000 लेड डाउन देयर लाइव्स। और क्या हुआ था? 50,000 लोग वक्त वाहिद क्या हुआ, अपनी जानें दे दिए। ओके, सो इंडिया गेट जो मेमोरियल है, इंडिया गेट मेमोरियल जो कि दिल्ली में है, उनकी याद में ही बनाया गया है। ये सब सोल्जर्स की याद में इंडिया गेट मेमोरियल बनाया गया है। ओके, आई होप everyone have understand it clearly. If you like this video, please share and subscribe it among your friends. Inshallah, I will be come back with World War II video. Thank you.